So now we are live. Good morning, everyone. Today's series is webinar series 9, Sigma Franchise Summit. And we are happy to, close these all 9 series with various topics. And we received a lot of, appreciation from new entrepreneurs. काफी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए regarding new opportunities, sectors, strategies, business strategies, and somehow we find out that people are looking for starting business now, and speed of new entrants is very high. बहुत लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं and they are looking for opportunities, but somehow because lack of knowledge or probably the right path, they are not able to achieve the directions for new business. So today we have coming up with a topic called buy a startup opportunity for new entrepreneurs and investors. It's a very interesting topic, and people are now looking forward for this concept. This concept is somehow related to a new startup thing, as investor also can look into, and the new entrepreneurs always looking for opportunity. So startup जो एक idea पहले से ही test हो चुका है and validate हो चुका है, उसके लिए we are coming up with this model. So before starting this, I would like to give a brief of our panelists, those who are going to discuss about the this topic, and they are going to give us the idea how to get into this. So I'll start with Gaurav sir, Gaurav Kapoor sir. He is a CA by profession, and he's now currently serving with NSDC. He leads industry partnership and corporate social responsibility at NSDC. He is responsible for business development, operation, financing, and advocacy to set up demand-driven greenfield skill development institutes and upgrade brownfield ones through CSR and other financing models. He also drives engagement with industries to invest in national skill development programs. Welcome, Gaurav sir, for coming over. Now, our next panelist is Mr. S.K. Gautam. S.K. Gautam's come from from agri-business industries. He's serving from last 29 years, and he's very enthusiastic and a very dedicated professional in agri-business industry. He has served with a lot of international and Indian MNCs. He has worked with corporates like Murugappa Group, National Bulk Handling Corporation, Renbexi Group, Mahindra and Mahindra, Aditya Birla, and many others, and Indian Potash is one of them. So welcome Gautam sir to coming over. Our next panelist is Mr. Vivek Raman. He is co-founder with Rigrob. Vivek is a very dynamic and young entrepreneur. He is co-founder at Rigrob, and he is an IT enthusiastic, empathetic, and loves travel with a taste of adventure. He is a passionate cyclist and an excellent leader. He is running around 55 successful franchises at Rigrob, and few of them he has made in this last corona pandemic time. So it's a big achievement for Rigrob. So Rigrob.com is basically a unique business model which is O2O model, and in this real estate industry it is working very fine even in the pandemic time as well. And he's also author of Earn Your Freedom and 9 to 5 Job to Entrepreneurship. He's also a president of Greater Noida West Entrepreneur Association. Welcome Vivek ji for coming over. Ashish Kaushik. So our next panelist is Ashish Kaushik ji. He is our franchise expert and well-known personality in the industry for entrepreneurs community. He is also co-founder of Rigrob. Ashish Kaushik is a very passionate entrepreneur at Rigrob. He is a growth hacker, business scaling professional, and keynote speaker in various organizations. He is an IIM alumni and constantly learning new trends. He is half marathoner also. He lives with two parents. He lives with parents and two lovely children and his better half. So welcome Ashish ji, and since you have been working with a lot of startups and entrepreneurs community, so this topic belongs to your passionate activity. So welcome Ashish ji, and we are looking forward for many the pain points which people are facing. And let's start this session with a few questions and answer, and also we are looking forward for a lot of suggestions from all the panelists. So I'll be starting with this first question. Buy a startup looks so good, but buying a startup means having huge money. Is it so, or we have a simple plan with medium or less capital? So basically, this question is itself is a giving an answer. But मैं जानना चाहूँगा गौरव सर, this is a very new trend अभी जो market में आया है. लोग startup को एक idea लॉजी फेस से निकाल कर एक वैलिडेट कर रहे हैं बिजनेस को, एंड नाउ दे आर लुकिंग फॉरवर्ड बिकॉज दे आर फेसिंग मे बी अ प्रॉब्लम और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन्वेस्टर्स.
So, what is your outlook on this concept, buying a startup, as a for the new entrepreneur as well as for the investors? जितेंद्र, इसमें एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस में हमें एक चीज समझना पड़ेगा। फॉलोड इंडिया फॉलोज वेरी क्लोजली अमेरिका इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। तो हमारे यहाँ पे भी स्टार्टअप की तादाद बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स के लिए आगे आ रहे हैं और पिछले 5-7 सालों के अंदर एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्यूबेशन, स्टार्टअप बूट कैंप्स और ये एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है कि स्टार्टअप्स को फैसिलिटेट करने के लिए। अब इंक्यूबेशन में जो जाता है वो अपने आइडिया को इंक्यूबेट करता है और मैक्सिमम जो है वो पीओसी लेवल तक, जिसको कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पायलट लेवल तक ला पाता है। जी। उसके बाद उसको इन्वेस्टर की जरूरत पड़ती है। अब कुछ लोगों को इन्वेस्टर आराम से मिल जाते हैं, कुछ लोगों को इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं। तो वो लोग जो हैं ये बाइंग अ स्टार्टअप के आइडिया की तरफ जाते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर इन्हीं आइडियाज को, जिनका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो चुका है, जिनकी इनोवेशन हो चुकी है, जिनको एक कमर्शियल लेवल तक लाया जा चुका है, वहां जी। से वो डायरेक्ट आइडिया खरीद के उसको साथ में चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको जिसका आइडिया है उसको बिल्कुल हटा देना है, उसको भी रखिए अपने साथ, बट यू आर more or less buying the entire idea and the startup business which has been created। ये आगे जाके और भी बहुत सारी चीजों से फर्दर इन्वेस्टमेंट्स और फर्दर उसके साथ जुड़ सकता है, और नहीं तो ये अपने आप में एक फुल फ्लेजेड बिजनेस बन सकता है। राइट सर, आई मीन इसके अंदर से एक सवाल यही आता है कि जो लोग ऑलरेडी स्टार्टअप कर चुके हैं, तो जो उनका जो आइडिया है आज के डेट में, जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला मार्केट में, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से, एज वेल एज डिफरेंट वेंचर्स, ओला, उबर और फ्लिपकार्ट वन ऑफ द एग्जांपल। तो क्या राइट टाइम कौन सा हो सकता है इसमें, जब हम स्टार्टिंग करते हैं और हम जब सोचते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हम डिफरेंट एग्जीबिशंस में भी जाते हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स कहीं ना कहीं खोजते होते हैं, तो वेयर यू फाइंड कि कौन सी एक स्टेज पता होती है हमें कि हाँ अभी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग? सी, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन्वेस्टर को एक आइडिया जो कि आइडिया से डेवलप होके इंक्यूबेट होके एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेवल तक आ गया हो। मतलब सपोज करिए कि एक बिजनेस है, सपोज हम इंफ्रास्ट्रक्चर का ही बिजनेस लेते हैं, विवेक जी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो विवेक जी ने जब ये बिजनेस शुरू किया होगा तो पहला इन्होंने ऑफिस या पहला इन्होंने जो अपना बनाया होगा वो खुद बनाया होगा। फिर उसको देख के लोग आगे आए होंगे और उसकी तरह से लोगों ने फ्रेंचाइजी लेनी शुरू करी होगी। फ्रेंचाइजी भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही होती है, वो आप अपना एक आइडिया को भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से जब आपने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कर लिया, जब एक आइडिया मार्केट में प्रूव हो गया कि आइडिया चल सकता है, उस वक्त उसको ले लेना अच्छा रहेगा। उससे पहले थोड़ा रिस्क ज्यादा है। थैंक यू गौरव सर। नाउ द सेम क्वेश्चन, आशीष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज आप काफी क्लोजली एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी के साथ हैं, एंड आपने बहुत सारे वेंचर्स को ग्रो होते हुए देखा है, एंड नाउ दे आर रीचिंग टू माइलस्टोन्स। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस द सेम क्वेश्चंस? देखिए, गौरव सर ने कुछ थोड़ी बातें तो क्लियर बताई हैं, जो कि एज ए इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर माइंडसेट होता है कि दे कैन गो आफ्टर द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और उसके बाद इन्वेस्ट करने की चाहत होती है उनमें, या वो जनरली इसके बाद ही करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फ्रेंचाइज में हो चाहे जो भी हो। इन्वेस्टर कैन बी इस एट लोअर लेवल। ऐसा नहीं कि जो कोई 50 करोड़ 100 करोड़ लगाता हो वही इन्वेस्टर, ऐसे इट डजंट मीन। अभी एग्री में इंडिया में कई वेंचर कैपिटलिस्ट दे आर वर्किंग। मैं एग्री एंड फूड सेक्टर की बात करूंगा ज़्यादा। मैं ओवरऑल, जैसे गौरव सर ने ओवरऑल बताया, मैं एग्री एंड फूड सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अभी कई वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या इक्विटी फंड के लोग हैं जो लोग इंडिया में दे आर वर्किंग स्पेशली इन एग्री एंड फूड सेगमेंट। उनका ऑब्जेक्टिव है कि एग्री एंड फूड सेगमेंट में काम करना, उसी को एनालाइज करते हैं, यूसी देखते हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देख के एनालाइज करके इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन फूड सेक्टर में ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिश्ड है। और यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट I think sir, you are नहीं है
internet connection is failing. और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यदि यहाँ भी इट्स ओके नाउ, अभी ठीक है? या अच्छा, तो अभी क्या जो एग्री सेगमेंट में, फूड सेगमेंट में क्या है कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बिना भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मॉडल. एवरीवन नो हाउ द फूड्स मूव फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्लेट्स. सो प्रूफ इज ऑलरेडी, इफ देयर इज टेक्निकल इंटरवेंशन, कोई आईटी एप्लीकेशन है तो वो ऐड और एडवांटेज मिल जाता है. तो जनरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो आईटी एप्लीकेशन से, आईटी इनेबल्ड फूड एंड एग्री सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं. और कई बार होता है कि यदि कुछ इन्वेस्टर्स को मैंने देखा है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी, दे फिक्स ए कॉल, वो पे करते हैं, दे पे फॉर द कॉल एंड दे गेट द कंप्लीट इनसाइट ऑफ द होल बिजनेस. तो हमारे जैसे लोगों को वो कॉल करते हैं, इनसाइट लेते हैं एंड दे गो फॉर द इन्वेस्टमेंट. जो इस फील्ड से जुड़े नहीं हैं वो लोग ऐसे भी करके. तो आप ये कह रहे हैं कि सर कुछ एजेंसीज इन्वॉल्व हैं जो कि ड्यू डिलिजेंस करके देती हैं उस स्टार्टअप के लिए या कोई बाइंग करना है. थैंक यू गौतम सर फॉर गिविंग दिस इनसाइट. आशीष जी, मैं आप पे आना चाहूँगा बिकॉज दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू यू, तो थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए सर इसमें. आशीष जी. Thanks, Jitendra. Thanks for calling me in this exciting topic of startups, how people can participate in this startup success story of India. तो आप अगर देखेंगे इंडिया में स्टार्टअप किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, तो आप लोग काफ़ी अनबिलीवेबल फैक्ट आपको मिलेंगे कि इंडिया के पास आज की डेट में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का. 2 से 3 टेक स्टार्टअप्स और टोटल 8 to 10 स्टार्टअप्स आर ऑलमोस्ट कमिंग अप डेली. In 2019, India had almost 50,000 startups. That was just जैसे गौरव सर ने बताया कि यूएस के तुरंत बाद इंडिया में 2nd नंबर पे स्टार्टअप्स हैं. तो अभी जो हमारे एंटरप्रेन्योर दोस्त इसमें आए हुए हैं कि हाउ दे कैन बी पार्ट ऑफ दिस सक्सेस स्टोरी, स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी इन इंडिया, की इंडिया बहुत तेजी से ग्रो रहा है, स्टार्टअप से बिजनेस अपना ग्रो कर रही है, तो हम स्टार्टअप में कैसे इन्वेस्ट करके अपने आप प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं. तो देखिए, स्टार्टअप एक बिजनेस होता है जो शुरुआत से शुरू होता है, स्क्रैच से शुरू होता है, अलग अलग चीजों पे होता है. कुछ डीप टेक स्टार्टअप होती हैं, कुछ एग्रीगेटिंग स्टार्टअप होते हैं, कुछ प्रॉपर ऑफलाइन स्टार्टअप्स होती हैं. तो समझना जरूरी है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टार्टअप. जितने टाइप के बिजनेस हैं उनमें देयर आर अपॉर्चुनिटी और उतनी टाइप के स्टार्टअप्स हैं. फिर हम देखते हैं कि आज की डेट में बहुत न्यूज आ रही है कि ये स्टार्टअप इतनी बड़ी होगी. वी टॉक्ड अबाउट फ्लिपकार्ट इन इंडिया, वी टॉक्ड अबाउट ओला, वी कैन टॉक अबाउट इनमोबी, जोहो. तो इंडिया से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज बिल्ड हुई हैं जिसमें बाहर की कंपनीज ने भी आके पैसा लगाया है. फ्लिपकार्ट में लगाया, सॉफ्ट बैंक ने पैसा पेटीएम में लगाया, इनमोबी ग्रो हुई. तो बहुत सारी न्यूज हैं. अब उन्हें पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ बड़ी कंपनी पैसा लगा सकती है, सीक्वा पैसा लगा सकता है, या और कोई बहुत बड़ा फंड एनी है जो यूएस बेस्ड है, वो 1000 करोड़ का इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये दो चीज हमने जानी कि स्टार्टअप्स किस तरह से ग्रो हो रही हैं और उनमें न्यूज क्या है. तो हमें ऐसा लगता है पी फंड्स हैं. अब इसमें इन्वेस्टमेंट में 2-3 ऑप्शन होते हैं जिसके से नॉर्मल इंसान भी स्टार्टअप्स से फायदा उठा सकता है. एक तो बड़े पी फंड्स हैं जिसमें नॉर्मल कैपिटल वालों के लिए जगह थोड़ी उस तरीके से नहीं है, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं. देन एंजल फंड्स हैं. देखिए, स्टार्टअप्स को पैसे की जरूरत शुरुआत में बहुत होती है, बिफोर पीओसी, जब वो बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं. उस समय उनके लिए मैं कह रहा हूँ 5 से 10 लाख रुपए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है शुरुआत में. जैसे हम लोगों ने काफी बार पढ़ा है, एक किसी ने पेटीएम में विजय शेखर शर्मा जी को 25 to 30 लाख का इन्वेस्टमेंट शुरुआत में किया था जब पेटीएम बिल्कुल ग्रो हो रही थी. दैट बिकेम बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट. जब पेटीएम बहुत बड़ी होगी तो उनके पास इतना स्टेक था. तो दिस टाइप की न्यूज भी है जहां पर हमारे जैसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं. वो एक जगह क्राउड फंडिंग. आजकल क्राउड फंडिंग से भी स्टार्टअप्स ने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया. 1-1, 2-2, 3-3, 5 लाख रुपए तक इकट्ठा करती हैं सब लोगों से और एक बड़ा कॉर्पस बना करके अपने बिजनेस को चलाती है. तो सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि हम उस स्टार्टअप का बिजनेस समझें, वो किस इकोसिस्टम में वर्क कर रही है, तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें.
लेकिन और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योर्स किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो हमने बात की अभी तक पैसिव इन्वेस्टिंग की, अभी हम बात करेंगे एक्टिव इन्वेस्टिंग की। तो जैसे गौरव सर ने कहा कि बाइंग ए फ्रेंचाइजी इज आल्सो स्टार्टअप। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपना बिजनेस शुरू करना चाहा, कुछ कैपिटल आपने इन्वेस्ट करने की सोची, तो आपने किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया विच इज ऑलरेडी डूइंग गुड। आपने उसके साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाई और अपने इलाके में उस बिजनेस को करना शुरू किया। सो दिस इज अगेन ए स्टार्टअप। बस आपकी एक जो टीम है वो एक्सपीरियंस टीम है, आप अपना पैशन लगा रहे हैं, आप अपना टाइम लगा रहे हैं और आप अपनी थोड़ी सी कैपिटल लगा रहे हैं। सो दैट इज ऑल्सो स्टार्टअप। आई थिंक दैट इज द मोस्ट वायबल ऑप्शन for people who are looking to start their business and be a part of this startup growth story। क्योंकि नई नई बिजनेसेस आ रहे हैं, नई नई फ्रेंचाइजीज आ रही हैं। आप उनमें से अब जो बिजनेस आपको समझ में आता है, और लास्ट टाइम हमने स्ट्रेटेजिक फिट, ऑपरेशनल फिट, मार्केटिंग फिट्स की बात की, जो आपके साथ फिट हो रहा है आप उसके साथ कोलैबोरेट करके सक्सेसफुल बिजनेस अपनी खुद की स्टार्टअप सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ आशीष जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि बाइंग अ फ्रेंचाइजी इज आल्सो अ स्टार्टअप बाइंग। तो आई थिंक कल मेरी एक बात हो रही थी। आई मीन देयर वाज सम पर्सन, ही इज इनटू सीएनजी, और उन्होंने सीएनजी मास्टर्स के नाम पे अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था एंड नाउ इट इज ग्रोइंग। सो आई हैव जस्ट शेयर विद हिम आइडिया कि क्यों ना हम इसको एक एडवांस लेवल पे ले जाएं और उसमें हम लोग फ्रेंचाइजी। तो उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया एंड दे आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर पीपल हु कैन ज्वाइन विद देम। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि शायद लोग सोचते ही नहीं है कि वो हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, उस लेवल पे जा सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि यू राइट अ बिजनेस मॉडल एंड आई थिंक जो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स मार्केट में ग्लिम्स के साथ नहीं माने जाते, पीपल समटाइम कॉल इट कि ये तो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, बट इट इज अ व्हाइट कॉलर जॉब नाउ। एवरीथिंग इज एन टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी राइट पाथ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, और हमारे एंटरप्रेन्योर्स भी सुन रहे होंगे। मैं विवेक जी से भी जानना चाहूंगा, मेरा अगला सवाल है कि डज दिस स्टार्टअप इज बेटर देन स्टार्टिंग ऑन योर ओन? बिकॉज ये बहुत एक बड़ा कंट्रोवर्शियल है जो शायद नाम के साथ चलता है, बट हम कर वही रहे होते हैं, लेकिन लोग इसको अलग अलग इसको डिफाइन करते हैं। विवेक जी मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर पीपल हु आर लिसनिंग टू अस। विवेक जी। Thank you, Jiten, and thank you all panelists and the audience who are here. सबसे इम्पोर्टेंट एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आई कम टू योर क्वेश्चन ऑल्सो। हम ये सोचते हैं इफ आई हैव अ ह्यूज मनी देन ओनली आई विल बिकम अ सक्सेसफुल। दैट इज अ बिग मिथ विच आई बिलीव। हमेशा ये लगता है कि आज मेरे पास 10 करोड़ रुपया होता तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस बना देता है, या 20 करोड़ होता तो उससे भी बड़ा बिजनेस बना देता। देयर इज नो लिमिट, 100 करोड़ भी हो सकता है, 200 करोड़ भी होता है। तो ये सिर्फ एक ड्रीम की तरह चलता है हमारे साथ में। तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने अभी तक अपना बिजनेस बनाया ही नहीं, प्रूव ही नहीं किया मार्केट में, एक स्केलेबिलिटी ही नहीं लाई, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस ही नहीं बनाया। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि आज मुझे अपना, अगर मुझे इतना पैसा मिल जाएगा तो मैं इसको सक्सेसफुल बिजनेस बना दूंगा? आपको कोई भी अगर पैसा देता है तो पहले आपका एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल जो आपने ओवर द ईयर डिराइव किया है कि ठीक है अब मैंने राइट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, अब मैंने राइट बिजनेस मॉडल आइडेंटिफाई कर लिया है, now I can ask for a money, now it will make my business successful, I have reached that point. So it takes over year and year. It may take you 5 years, 6 years, 7, 10 years, 20 years. Nobody knows, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितनी जल्दी आप स्केल करोगे, कितनी जल्दी आपका बिजनेस मॉडल परफेक्ट बनेगा। तो that is one of the option that you can try it. And second, there is another option कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लीजिए जिसका बिजनेस मॉडल ऑलरेडी प्रूवन है, जिसका ऑलरेडी प्रॉफिट्स आ रहा है, जिसकी ऑलरेडी स्केलेबिलिटी है, जिसने अपने ओवर द इयर्स उसने 10 साल लगा के इस बिजनेस मॉडल को परफेक्ट किया है। तो दैट कैन बी वन ऑफ द फ्रेंचाइजी मॉडल दैट यू कैन से, बिकॉज आपको एक सिनर्जी मिलती है, उसके साथ एक एनर्जी मिलती है, वो अपना सारा आपको एक्सपीरियंस एक साथ में देता है, आपको पूरा रेडीमेड बिजनेस प्लान सेट करके देता है एंड एवरीथिंग। So these are the two things which I look for any business. गौरव सर, द सेम क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप भी इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करें, सिंस यू आर ऑलरेडी हैविंग लॉट ऑफ टीपीज इन स्किल डिपार्टमेंट एंड काफी सारे स्किल के लोग बड़ी परेशान चल रहे हैं अभी। तो क्या उनको भी कुछ ऐसा बिजनेस देखना चाहिए जिसमें कि वो हमेशा डाइवर्सिफाइड होके चलें और इस तरह के वेंचर्स में इन्वेस्ट करें, नॉट ओनली देम बट अदर पीपल ऑल्सो?
देखिए जितेंद्र, ये तो बहुत प्रूवन फैक्ट है कि जितना आप अपने आप को, अपने रिस्क को स्प्रेड करते हैं, उतना आप अफेक्ट कम होते हैं। आप कभी भी अगर सिंगल क्लाइंट पे डिपेंडेंट हैं या आप सिंगल आइडिया पे डिपेंडेंट हैं, तो आपका रिस्क ज्यादा होता है। तो इसलिए डाइवर्सिफाई करना तो अच्छा रहता है। कोई भी अगर एक बिजनेस भी है, मैं ये नहीं कहता कि बिजनेस की जगह आदमी को 5 बिजनेस खोल लेने चाहिए, बट Right. उसी बिजनेस पे अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एक सिंगल कस्टमर पे या एक सिंगल प्रोक्योरमेंट के लिए नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए। आपके पास मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए, ताकि आपको एक तरफ से कुछ रुकता हुआ नजर आए तो आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकें। प्रैक्टिकल एग्जांपल में जैसे आपने ट्रेनिंग पार्टनर्स का नाम लिया, हाँ इस वक्त जिन्होंने ट्रेनिंग पार्टनर से अपना मॉडल कंप्लीटली बिजनेस पे बना, उस पे गवर्नमेंट ग्रांट पे बनाया था, वो आज थोड़ा फंसे हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से अभी ग्रांट नहीं आ रहा है, कोविड है, सेंटर बंद है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए बिजनेस का एक प्रिंसिपल यही होता है कि आप अपने रिस्क को कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं। जितने जगह पे, जितने लोगों पे आप डाइवर्सिफाई करेंगे, उतना आपके लिए इजी रहेगा। तो आई थिंक दैट इज द मॉडल विच वी नीड टू लुक। डोंट लुक एट मल्टीपल बिजनेसेस, बट विद इन योर बिजनेस हाउ टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। तो सर रियल एडवांटेज की अगर हम सर बात करें तो क्या बाइंग अ फ्रेंचाइजी कैन बी अ बाइंग अ स्टार्टअप थिंग फॉर दिस इज द एडवांटेज फॉर दीज पीपल, अगर वो लोग इस तरह का बिजनेस देखते हैं जो इमीडिएटली स्टार्ट हो सके? देखिए फ्रेंचाइजी में जैसे कि बात हुई हमारी, फ्रेंचाइजी भी आपके लिए तो आपका एक स्टार्टअप है। आप उसमें जो खरीद रहे हैं, एक प्रोवन आइडिया खरीद रहे हैं उस फ्रेंचाइजी के माध्यम से, और उस आइडिया को आप आगे चलाएंगे। आपके लिए तो आपका ही स्टार्टअप है, आप तो अपने जी, तरीके से ही चलाएंगे। तो एब्सोल्युटली इसलिए राइट सर। फ्रेंचाइजी में आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोवन मॉडल मिल रहा है, वो भी एक स्टार्टअप ही है एक तरह से आपके लिए। थैंक यू गौरव सर। Dr. Sumit is with us now. Dr. Sumit, I would, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे साथ में है एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. Now the same question, startup is a better than starting on your own because we are talking of buying a startup. हम startup buy करने की बात कर रहे हैं, तो कि Right. हमारा जो लास्ट प्रीवियस डिस्कशन था उसमें यही निकल के आया कि buying a franchise is also a buying a startup. Definitely, if a new person who is getting into a business, it's better to take a franchisee because they are getting a mentors, a team of mentors जो आपको हर स्टेप में गाइड कर सकते हैं और हर स्टेप में ये बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ से पैसा सेव कर सकते हैं. Suppose like when we are giving a bouquet franchisee, it means you have a business which is gonna run 24/7. Suppose you are merging a business which have a morning and night shift. The same property you are going to generate revenue in the 24/7 time. You know, तो आपका business definitely multiple वे ऑफ इनकम देगा आपको. और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक कुछ बिजनेस होते हैं जो सीजनल होते हैं. सपोज एग्रीकल्चर है, इफ यू आर हैविंग क्रॉप्स फॉर मल्टीपली मॉनसून, तो दूसरे सीजन में वो ड्राई रहेगा. पर व्हेन यू आर टेकिंग अ बुके फ्रेंचाइजी, आपके पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है जो थ्रू आउट द ईयर आपको एक रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा. लाइक इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एजुकेशन, नॉर्मली एजुकेशन का सीजन होता है फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टिल अगस्त. तो अगर मार्च टिल अगस्त इफ यू आर हैविंग अ एजुकेशन एडमिशन फ्लो and you are generating a good revenue, but after August what you will do? So if in our institute, like we are having a aviation training institute, after August we have like festival season, we do charter aircrafts, helicopter operation, elections and all. So when they take a franchisee, it's not only they're involved only in education. After the season also they have all throughout the year they are generating revenue. So the risk is minimum and the multiple way of income. Same way marketing का cost आप हर angle से बचाते हो. नेशनल वे में भी मैगजीन एड्स होते हैं जब when you're taking a bouquet franchisee. So suppose you are taking a franchisee which have around 3 to 4 companies in that same. So 4 way of income of marketing you are gonna get. Suppose 4 कंपनी 4 तरह से मार्केटिंग करेंगे पर इनकम सारा आपके पास आएगा. तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है और आई थिंक ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है. ये कॉन्सेप्ट पहले कभी इंडिया में आया नहीं. अगर कोई ये कॉन्सेप्ट लेता है तो उसका फ्यूचर डेफिनेटली बहुत ब्राइट है. रिस्क डेफिनेटली बहुत कम है. तो आपने जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, एक तो रिस्क की आप बात करी है आपने, और जो ये सीजन वाला जो एक इशू रहता है कि पीपल आर वर्किंग फॉर 6 मंथ बट 6 मंथ उनको खाली बैठना है, तो वो भी मिट आउट हो सकता है इससे. Yes. थैंक यू सुमित सर. नाउ दी अगेन एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कैन अ इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो होता है जिसके वैरायटी ऑफ बिजनेसेस में जाना होता है, तो कैन अ इन्वेस्टर आल्सो यूज दिस रूट of buying a startup? So this is a very important question. So I would like to ask this question to Gaurav sir and then Gautam sir in the agri industry. Gaurav sir, what is your idea about the investor? जिसको हम एक investor बोलते हैं कि हाँ, I am an investor and I wanted to invest.
देखिए इन्वेस्टर क्या होता है, इन्वेस्टर छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। नॉर्मली हम लोग जब समझते हैं कि इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में उस पॉइंट पे आएगा जब हमारा बिजनेस एक लेवल से बड़ा हो चुका होगा, बट ऐसा नहीं है। अभी जैसे विवेक ने भी बताया, उस वक्त जो पैसा चाहिए होता है वो 5 लाख 10 लाख, आशीष जी ने भी बताया पेटीएम में इन्वेस्टमेंट की बात हुई। तो हर स्टेज पे इन्वेस्टर आता है। तो इन्वेस्टर स्टार्टअप में भी आता है, इन्वेस्टर प्री स्टार्टअप स्टेज में भी आता है कई बारी, कि आपके पास सिर्फ एक आइडिया है और आपके साथ जुड़ के उस आइडिया का एटलीस्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक बनवा लें। तो हर इन्वेस्टर की एक एंट्री पॉइंट होता है और एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो वो उस गेम में उस पीरियड में खेलता है। तो अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग टाइप से आते हैं। कुछ लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कुछ लोग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट से पहले आते हैं, और कुछ लोग जब बिजनेस एक लेवल से बड़ा हो जाता है उस वक्त आते हैं। तो हमें अलग अलग इन्वेस्टर्स को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करना चाहिए। yes, investors are available for startups also, and investors should also look for opportunity in startups because that gives multifold revenue, multifold profitability for their investment. थैंक यू गौरव सर। गौतम सर, मैं ये एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, ये एग्री इंडस्ट्रीज में कितनी इसकी अपॉर्चुनिटीज आपको लगती हैं? देखिए अभी एग्री एंड फूड इंडस्ट्री में जो अर्बन एरियाज में हैं, या जो उनमें जैसे टी शॉप्स हो गया, वो मैकडोनाल्ड हो गया, या और तरह तरह के कई छोटे भी चाय पॉइंट हो गया, इन लोग फ्रेंचाइज मॉडल में तो आ गए कंज्यूमर लेवल पे। लेकिन अभी भी एग्री सेक्टर में बहुत बड़ा सेगमेंट छूटा हुआ है, अवेलेबल इन एग्री सेगमेंट कवरिंग द रूरल पार्ट। और फंडिंग की बात हुई, वो तो सीड फंडिंग से ही स्टार्ट हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। कभी कभी आइडिया पे सीड फंडिंग कर देते हैं कॉन्सेप्ट पे, बाद में वो कॉन्सेप्ट जैसा गौरव सर ने बताया कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए फंड करते हैं। तो सीड फंडिंग से ही स्टार्ट हो जाता है और डिफरेंट स्टेजेस पे आते हैं इन्वेस्टर्स। एग्री में पीपल आर लुकिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट। तो अभी मेरे समझ से स्टार्टअप तो काफी ग्रो कर गए हैं, दे नीड राइट काइंड ऑफ फंड्स। लेकिन फ्रेंचाइज मॉडल या टेस्टेड मॉडल अभी तक नहीं है। दे आर पीपल, जो कुछ लोग आईटी इंटरवेंशन लेके काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कंपनीज पैसे लगा रही हैं। अब मैं कंपनीज के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत अच्छी कंपनीज जिनमें काफी बड़े लोगों ने, ओमनीवोर जैसे कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, दे आर काफी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट लेके किया था। लेकिन दे आर दैट कंपनी इज आल्सो स्ट्रगलिंग मे बी विद कोविड सिनेरियो। लेकिन जो फूड एंड एग्री पे बेस्ड है, उनके फेलियर होने का चांस नहीं के बराबर है, क्योंकि जैसे कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो अभी भी इस फील्ड में काफ़ी गैप है फ्रेंचाइज मॉडल में। और इन्वेस्टर्स के भी लोग अपर लेवल पे तो इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन लोअर लेवल पे इन्वेस्टर्स अब आना शुरू हुए हैं आफ्टर दिस कोविड पैंडेमिक। राइट गौतम सर, द कंक्लूजन इज कि अभी आपका जो एग्री इंडस्ट्री है, उस एग्री इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज अभी बाकी हैं। एंड आई थिंक काफी सारे लोगों ने पहले भी बताया है कि एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जो कि शायद हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहा है आज की डेट में, ये कोविड पैंडेमिक जब से आया है। एंड आगे भी इसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात अभी है, बाकी है। तो अभी आई थिंक सारे इन्वेस्टर्स भी और जितनी हमारी कंपनीज हैं जो बिजनेस मॉडल्स आ रही हैं, तो दे शुड आल्सो लुक इनटू दीज मॉडल्स। थैंक यू गौतम सर। विवेक रमन सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, हाउ वन शुड गो अबाउट बाइंग अ स्टार्टअप और अ फ्रेंचाइजी? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमने जो बात की है वो ये है कि स्टार्टअप बाइंग की बात कर रहे हैं हम लोग, और फ्रेंचाइजी को भी हम उसी नज़र से देखते हैं। और वो एक आइडियल मॉडल है जिसमें सिनर्जी और सिंक्रोनाइजेशन बन रहा है इन वेरियस इंडस्ट्रीज, नॉट एग्जैक्टली इनटू एग्रीकल्चर बट इन अदर्स आल्सो। तो what is the point where buying a startup or a franchisee should be through this route? So I think startup में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, if you see both sentences are same. Like if you want to invest in a startup, or so we can say that I want to invest in a company but I will not work. Okay, so that could be one of the option. The second option which you are talking, that I want to take I want to invest, I want to take a franchisee, and that then I want to work. So that is also a good model. So both models are open depending upon the company. Franchisee model is always हमेशा ओपन रहता है किसी भी कंपनी के लिए,
बट आप एक इन्वेस्टमेंट भी एक कंपनी के साथ में आप कर सकते हो, आप पैसा उसके साथ लगा सकते हो, एंड देन यू कैन हैव अ टीम हु कैन वर्क ऑन टेकिंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ दैट कंपनी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्लस सेकंड व्हाट आई फील कि आप एक फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी होती है कि आप किस इंडस्ट्री में यू वांट टू इन्वेस्ट, व्हाट इज़ योर पैशन फॉर दैट इंडस्ट्री, और आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं उस आपके पैशन से, और आपके किस तरह का आप स्टार्टअप जो आप ढूंढ रहे हो, वेदर इट इज़ आपका जो चॉइस है, वेदर इट्स फिट इनटू दैट फ्रेंचाइजी मॉडल और नॉट। ओके, तो आई थिंक अभी इसमें हमें और डिस्कस करना होगा कि ये जो बाइंग अ स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी के जो स्टेप्स हैं, या हम जो आपने बोला जैसे सर ढूंढने की बात है कि भी हम ढूंढ रहे हैं, तो वो पैशन के ज़्यादा हमें तवज्जो देना चाहिए या हम प्रॉफिट्स की ज़्यादा बात करें, या सिंप्लीफाइड के जैसे आप बोलते आते हो कि आपने बोला है कि एसेट लाइट फ्रेंचाइजी के बारे में बड़ा कॉन्सेंट्रेट आपने किया है, मैंने आपको काफ़ी सुना है। तो ये एसेट लाइट जो फ्रेंचाइजी होती है, या जो पैशन होता है, या जो प्रॉफिट्स होते हैं, किस चीज़ को पैरामीटर हम पहला बनाएं? मैं सेम सवाल आशीष जी से भी पूछूंगा, पर मैं जानना चाहूंगा विवेक सर से कि व्हाट आर दीज, इसमें कौन सी चीज को हम प्रायोरिटी दें व्हाइल चूजिंग दिस फ्रेंचाइजी? तो फ्रेंचाइजी के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू हैव राइटली सेड व्हिच इज अ वर्ड कॉल्ड एसेट लाइट मॉडल। दो जी तरह के मॉडल जनरली होते हैं, एक एसेट हैवी मॉडल होता है और एक एसेट लाइट। एसेट हैवी ये होता है, जैसा आप एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक टेलीकॉम इंडस्ट्री, आप वांट टू एंटर इनटू टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट में, दैट हो सकता है उसके लिए 50-100-200 करोड़ रुपए लगे। फिर आपको फाइबर्स लगानी पड़ेंगी, केबल्स डालनी पड़ेंगी, टावर लगाने पड़ेंगे, आपको हैंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो इट इन्वॉल्व टन ऑफ मनी, जितना पैसा चाहिए आपको उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और उसका जो रिटर्न है वो हो सकता है 10 साल 15 साल में आए। रिटर्न बहुत अच्छा आता है, बट बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न का जो प्रोसेस है वो ओवर द टाइम आता है, और इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब हम अगर बात करते हैं एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में क्या होता है कि आपका अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, आप दूसरे के प्रोडक्ट को एक्चुअली यूज करते हो, तो इट बिकम्स अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। जैसे कि अगर हम बात करें, एक कंपनी है एयरबीएनबी, विच इज अ $1 बिलियन कंपनी। तो वो क्या करती है कि आपका अपना घर है, आप अपने घर को 1 डे या 1 दिन 2 दिन के लिए रेंट पे दे सकते हो, आप वहां पे जाके लिस्ट कर सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को, और वहां से आप जो आपका अनयूटिलाइज स्पेस है, जैसे होटल में 1 दिन के लिए लोग रुकते हैं, वैसे ही आपके घर पे आके लोग रुकेंगे, और दे विल पे यू फॉर 1 डे 2 डे डिपेंडिंग ऑन, दैट इज अ वेरी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। उस कंपनी के लिए एसेट है, क्योंकि एयरबीएनबी को कोई होटल नहीं बनाना पड़ा, वो लोगों के घर को यूटिलाइज कर रही है। सो कमिंग टू माय बिजनेस, जैसे हम रियल एस्टेट में, वी वर्क इन द रियल एस्टेट, सो वी हैव डन टाई अप विद ऑल द बिल्डर्स, हमने सारे बिल्डर के साथ में टाई अप किया हुआ है, तो हमें कोई प्रोडक्ट अपना खुद का रियल एस्टेट नहीं बनाना है, एंड देन हम उस रियल एस्टेट को सेल करते हैं। तो एक्चुअली आप देखो, इट इज अ वेरी एसेट लाइट, हमें कोई रियल एस्टेट नहीं बनाना पड़ा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा रियल एस्टेट बनाने में, हमें सिर्फ वी आर द एग्रीगेटर, जितने भी बिल्डर्स हैं उनको एग्रीगेट कर लिया और उनकी प्रॉपर्टीज को लिस्ट कर दिया अपने पोर्टल में। तो ये हमारे फ्रेंचाइजी के लिए भी बहुत अच्छा है कि जब वो हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उनको भी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना होता है। एसेट हैवी में अगर आप कोई ऐसे बिजनेस करने जाओ, आप सपोज कपड़े की कोई फ्रेंचाइजी लेते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले शॉप खोलना पड़ेगा, फिर 10-20-50 लाख का कपड़े का माल खरीदना पड़ेगा, सो विच इज वेरी वेरी कॉस्टली थिंग। बट एसेट लाइट में आपको नहीं है, हमने प्रोडक्ट भी अपना पूरा आउटसोर्स कर रखा है, तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। थैंक यू विवेक सर। एसेट लाइट फ्रेंचाइजी, तो इसका बड़ा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है फॉर चूजिंग अ फ्रेंचाइजी में। आशीष जी, आप क्या वैल्यू ऐड करना चाहेंगे सर? Jiten, in the meantime, you have asked so many questions. So, which specific question you want me to सी दी talk on? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, क्योंकि आज जो भी हम बात कर रहे हैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं जो कि बाइंग अ स्टार्टअप, एंड बाइंग अ स्टार्टअप। और हमने जब अपने ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन हमने जब डिस्कशन किया, तो सारे पैनलिस्ट का यही कहना है कि बाइंग अ फ्रेंचाइजी इज ऑल्सो बाइंग अ स्टार्टअप फॉर इन्वेस्टर एंड ऑल्सो जो नए हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो हमारा आज का ये सवाल है आपसे, या हम इसको एक वैल्यू एडिशन पॉइंट्स जानना चाहेंगे आपसे सर, कि बाइंग अ स्टार्टअप और फ्रेंचाइजी के लिए क्या वो स्टेप्स हैं, या क्या वो पैरामीटर है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी एसेट लाइट फ्रेंचाइजी के बारे में, या पैशन के बारे में, या प्रॉफिट्स के बारे में। तो वो क्या वो तरीके हो सकते हैं जिसको कि हम प्रायोरिटी लेके चलें? जी।
या थैंक्स जितेन। तो जितेन जी, मैं मतलब ये डिस्कस करना चाहूंगा कि हम जो भी बिजनेस करते हैं ना, वो हमारी पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन होता है और उसके साथ हमें लगातार काम करना पड़ता है। तो आई एम ए बिग बिलीवर ऑफ डूइंग थिंग्स इन ए वे कि वो आपकी जो बिजनेस हो वो आपकी काफी सारी जरूरतों को पूरा करे। इंसान के पास कुछ टेंजिबल्स भी होते हैं, इंटेंजिबल्स भी होते हैं। तो जो बिजनेस है वो आपकी पूरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, जैसे हमने पिछली बार भी डिस्कस की कि शॉर्ट एनालिसिस, सिंपल एनालिसिस है, उसके साथ वो मैच करना चाहिए, तभी आप कंप्लीटली उस बिजनेस में इमर्स हो सकते हैं, उसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो काफी सारे पॉइंट्स जो डिस्कस हम लोग करते हैं, वो जैसे पैशन आपका बिजनेस में होना बहुत जरूरी है। किसी बिजनेस में पैशन नहीं होगा, सिर्फ पैसा पैसा होगा, तो यू माइट नॉट लाइक इट। और सिर्फ पैशन पैशन होगा और सिर्फ और पैसा नहीं होगा, तो अगेन इट विल बिकम ए हॉबी ओनली। सो बिजनेस से आपको देखिए पैशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद पैशन इज समथिंग आर्ट। आप जब सोचोगे कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, आपका बिजनेस उससे बिल्कुल कोरिलेट होना चाहिए। फिर आपका फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि द बिजनेस विच यू आर डूइंग इज आल्सो योर लाइफ लाइन। आप उससे जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे आपकी फैमिली, आप खुद सरवाइव करेंगे। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बड़े क्लियर होने चाहिए आपके पैशन के बाद, कि इसमें कितना पैसा आएगा, गोइंग कंसर्न कब तक आपका रहेगा, आपको कब पैसा आना शुरू हो जाएगा, ये सब आप बड़ा क्लैरिफाई कर लें सिंपल सॉल्यूशन से। देन आपका स्ट्रेटेजिक फिट कंप्लीट होना चाहिए। लेट अस से कि मैं एक एग्जांपल हमेशा डिस्कस करता हूँ कि जैसे मैं मान लीजिए somebody is looking for a business जिसमें वो 2 साल के अंदर he wants to drive a BMW। so उसे जो चाय बेचने का बिजनेस है वो सूट नहीं करेगा, क्योंकि वो कितनी चाय बेचेगा, एक BMW खरीदने के लिए उसे लाइन लगाकर चाय बेचनी पड़ेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। बट दैट इज पॉसिबल इन रियल एस्टेट और सम अदर बिजनेसेस, जहां पर एवरेज रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन इज वेरी हाई। फिर ऑपरेशनल फिट होना चाहिए। जैसे किसी बंदे को मान लीजिए लगातार बैठना पसंद नहीं है, ही डजंट वांट टू सिट एंड डू वर्क, ही लाइक्स टू गो आउटसाइड एंड मीट पीपल, तो उसे एक QSR, छोटा सा जो QSR होता है जिसमें फास्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं, वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें लगातार बैठना पड़ता है, सुबह सब्जी भी लेके आनी पड़ती है, दिन में सारा दिन काम देखना पड़ता है। तो आपका ऑपरेशनल फिट भी होना चाहिए। और फिर मार्केटिंग फिट भी आपका होना चाहिए, कस्टमर आपके पास कैसे आएंगे वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपको टेक्नोलॉजी फिट भी देखना चाहिए कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ जो आप बिजनेस लेना चाह रहे हैं वो आज के जो टेक्नोलॉजी ट्रेंड है उनके साथ फिट हो रहा है या नहीं। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जिनमें आपको पूरा एक बिजनेस मेजर करना चाहिए, तब आपको बिजनेस अपने लिए चूज करना चाहिए। तो आशीष जी, मैं कुछ टिप्स भी जानना चाहूंगा हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि क्या टिप्स आपकी तरफ से होंगे फॉर टेकिंग दिस डिसीजन। जी, तो जितेन जी, मैं आपके साथ काफी दिन से वर्किंग कर रहा था, हम लोगों ने बुटीक फ्रेंचाइजी पे काफी काम किया। तो बुटीक फ्रेंचाइजी आई बिलीव कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपकी कंपनी का, जिसमें एसेट लाइट बिजनेस मॉडल की विवेक ने बात की, सुमित जी ने भी बोला कि किस तरह से सीजनल बिजनेस होते हैं, कि एग्रीकल्चर का अभी हम एडमिशन ले रहे हैं, फिर हम जब इलेक्शन होंगे तो लोगों को हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करने लगेंगे। तो एट डिफरेंट टाइम डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कीप कमिंग। तो जो बुके फ्रेंचाइजी है वो काफी सारी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को कम एसेट से कंप्लीट करने का एक मीडियम है, कि आपने एसेट कम रखे लेकिन उससे ज्यादा लोगों की ज्यादा जरूरतें पूरी की। तो और टिप्स के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको हमेशा सोचना है कि आपको क्या एडवांटेजेस फ्रेंचाइजी से मिल रही हैं। आप देखो, आपको एक तो सक्सेस ब्लूप्रिंट मिल रहा है, तो आप वो जरूर देखें कि कंपनी का ब्लूप्रिंट कितना अच्छा है, उसका बिजनेस कितनी जगह ऑलरेडी प्रूव हो रखा है, कितना टाइमलाइन है उसके साथ। देन फास्टर वेज टू रेवेन्यू, हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम मिडिल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो मिड लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट PE फंड्स और कि उनका लंबा होराइजन है। हम में से ज्यादातर लोगों का होराइजन 6 months to 1 year वाला है, अभी जिन लोगों से हम ज्यादातर डिस्कशन में जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कितनी जल्दी आपको प्रॉफिट्स आने शुरू हो जाएंगे। और आप टीम से जरूर मिलिए कि वो टीम कितनी अच्छी है, उन्हें टीम को कितना बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग है, उनका ब्रांड कितना अच्छा है। सो ये सब चीजें देख करके आप डिसीजन मेकिंग करिए कि आपको कौन सी फ्रेंचाइजी सबसे ज्यादा सूट करेगी। और जैसा गौरव कपूर सर ने बोला कि आप एक फ्रेंचाइजी ले रहे हो, लेकिन आपके लिए तो वो अपनी स्टार्टअप ही है। हमने भी अपनी स्टार्टअप शुरू करी है, तो हमने भी बहुत सारी सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट जगह से ले रखी है।
एक CFO सर्विस ले रखी है, किसी से इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ले रखी है, AWS से हमने क्लाउड सर्विसिंग ले रखी है। सो ऐसे ही आप जब अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो आप एक और ज्यादा बड़ी सर्विस एक एग्जैक्ट कंपनी से ले रहे हो जो R&D करके आपको सब कुछ कंबाइन करके दे रही है। तो आपके लिए अपना स्टार्टअप है और आई बिलीव दिस इज अ वेरी गुड वे टू मेक योर स्टार्टअप सक्सेसफुल। थैंक यू आशीष जी, आपने कंप्लीट किया पूरे टॉपिक को कि बुके फ्रेंचाइजी आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है जो कि सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट्स होते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए। गौरव सर, व्हाट आर योर टिप्स फॉर टेकिंग दिस डिसीजन टू बाय अ फ्रेंचाइज और बाय अ स्टार्टअप? देखिए, बाइंग जहां तक है, अगर अगर मुझे कुछ भी करना है तो मुझे अपनी फिटमेंट देखनी है। मेरी फिटमेंट क्या है कि जैसे अभी आशीष जी ने भी बताया, पैशन, मेरा इंटरेस्ट, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, मैं बैठ के काम नहीं कर सकता, मुझे बाहर लोगों से मिलना पसंद है। तो वो सब फिटमेंट देखने के बाद एक आइडिया पे जीरो डाउन करना चाहिए। फिर उस आइडिया का प्रॉपर बिजनेस प्लान स्टडी होना चाहिए। बिजनेस प्लान आपके लिए मैच करता है कि नहीं, ये भी आशीष जी ने बताया। अगर आपको 2 साल में BMW चलानी है तो चाय की दुकान से तो नहीं चलेगी। तो इसलिए आपको बिजनेस की जो ग्रोथ पोटेंशियल है और आपकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके साथ दोनों चीजों को मैच करना है। फिर बात आती है जो मैं हमेशा से कहता आया हूं, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस। आपका बिजनेस कितने दिन के लिए सस्टेनेबल है और इसको आप कैसे स्केल करेंगे। स्केल करने के अलग अलग पड़ाव आ सकते हैं, बट स्केलेबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस के अंदर ताकि आप उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। तो मेरे यही टिप्स हैं जो आशीष जी ने बताया, उस पर मैं सिर्फ 2 चीजें छोटी सी ऐड कर रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस। So these are the few important points: fitment and sustainability and scalability, which is a very important point. और I think सब लोग इसको आज महसूस भी कर रहे होंगे कि अगर ये सब चीजें रहें किसी फ्रेंचाइज मॉडल में या बिजनेस मॉडल में या कोई स्टार्टअप में, तो आई थिंक दे कैन हैव अ गुड डिसीजन। विवेक जी, सेम टिप्स फ्रॉम योर साइड। तो मैं हमेशा थोड़ा ज़्यादा फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा रखता हूँ, बिकॉज पूरी कंपनी का जो कोर है वो प्रॉफिट है। बिकॉज अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी विंग नहीं चलेगा। तो व्हाट आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा आप फोकस जो रहता है, मतलब बुके फ्रेंचाइजी लेने में या अगर किसी की भी फ्रेंचाइजी लेते हो, यू शुड हैव अ मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल। क्योंकि अगर मल्टीपल रेवेन्यू मॉडल होगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप 2 कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल अंडर बैनर ऑफ बुके फ्रेंचाइजी, उससे क्या होगा कि आप एक कस्टमर एक्वायर कर रहे हो, बट उस कस्टमर को आप 2 कंपनी के प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट थी वो तो कम हो गई, बट आप मल्टीपल प्रोडक्ट उसको सेल कर रहे हो। So that is a big thing to increase your profit, to increase your revenue. So that is, I think, that is a tip from my side. थैंक यू रमन सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि प्रॉफिटेबिलिटी एक कोर एरिया जरूर है जिसको कि हम देख सकते हैं, एंड आई थिंक बुके फ्रेंचाइज हमारा उस चीज को फुलफिल करने जा रहा है। थैंक यू विवेक सर। सुमित सर, what are the tips and the value addition you wanted to give? I'll tell you, like at the current pandemic situation, no, I think people are not willing to spend huge money. They don't want to invest a bigger amount in infrastructure and all right now, because setting up a new office, taking 2-3,000 square feet area, spending on interiors. So earlier, even when we used to run our franchisee, when we used to give the franchisee, we used to charge around 40 lakh rupees to design the interior. But now with the technology, we have changed the entire concept. Nowadays, like when we are giving franchisee, we say like you need to have 1,000 square feet open area, and we will give you a virtual reality equipment. You just wear the VR, and you will get the same feeling like you are inside the airport and inside the aircraft. You will get the training on actual situations. So now, because if you're taking a franchisee, you are gonna get something which is filtered way of income. So you don't have to spend on interiors and all. So that's a new technology. So if you're taking a bouquet franchisee, your team is doing a backend R&D every day to give you maximum profit. So that's the best way of going for like assetless business plans. Like how we say like Uber, Ola, they don't own any own cars. They just pay to the drivers and they're utilizing and the cars and they're getting income. So we are also in the same model nowadays. Nowadays we are merging with the existing brands like bigger colleges, universities, and we are generating revenue where we don't have to pay electricity, rents, anything. And this is like a successful model which we are experienced.
But if anyone is coming with a new own brand, a new startup, they have to make a base first, because no bigger university is gonna do a handshake with your company because you are just new to the industry. But if you are merging with a existing brand, definitely other big brands will also try to join hands with you. Thank you, Sumit sir. Gautam sir, some tips from your side. So in what I feel, and most of the things already covered by the earlier panelists. So what I think, the bouquet franchisee system is going to be the best in agri, rural sector, and in food in urban sectors, because most of these activities are interdependent, depends on seasonality of the whole business, because at particular time you need something, in the next 6 months you need something, handling is also going to be different. So the bouquet franchise is going to be the best for agri and food sector in India, whether it is urban or rural. And it is going to give a good kind of engagement and employment for the rural people also. थैंक यू गौतम सर. एट द एंड आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट आज हमारे को टिप्स मिले हैं. हम चाहे फिटमेंट की बात करें, स्केलेबिलिटी की, सस्टेनेबिलिटी की, ये दीज आर द वेरियस फैक्टर्स जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स ध्यान रखें. एंड जब भी उन्हें काम करना है तो एवरेज रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन का भी ध्यान रखना होगा कि हम किस तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं, जो हमारी फिटमेंट में आता है कि नहीं, और कितना हमें उसकी अर्निंग करनी है. तो आशीष जी, मैं आपके पास में एक समराइज करने जा रहा हूँ कि आपसे मैं जानना चाहूंगा ये जो बुके फ्रेंचाइजी है, कि क्या आप इनको बता पाएंगे 5-6 पॉइंट्स में, सो दैट everybody should be knowing about more about this bouquet franchise, and then we'll close this session with a thanks note. जी हाँ. सो जितेंद्र, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का, फिर मैं उसे बुके फ्रेंचाइजी से थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा. एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के फायदे हमने सबसे ज्यादा देखे इन टाइम्स ऑफ दिस पेंडेमिक. कोविड पेंडेमिक आई और रियल एस्टेट जो कि ऑलरेडी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दौर से गुजर रहा था, वो और थोड़ा डाउन हुआ. सो बिल्डर्स एंड ऑल दोज कंपनीज जिनके पास एसेट्स बहुत थे, जिन्होंने बहुत लैंड खरीद रखी है, बहुत ज्यादा घर बना रहे थे, उन जिनकी बैलेंस शीट्स बहुत हैवी हैं बाय इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम आई. ऑन द कॉन्ट्ररी, कंपनी लाइक अस जो कि बड़ी एसेट लाइट थी, एसेट लाइट नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली टेक्नोलॉजी बट इन टर्म्स ऑफ मोर रेवेन्यू ऑप्शंस, कि भाई एक आदमी ने घर लिया तो उसे होम लोन भी दिया, हम उसकी लीड को फिर बाद में इंटीरियर डिजाइनर से भी मैच करा देते हैं, तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन है वो मल्टीफोल्ड हो गया. प्लस एक ही कस्टमर की ट्रांजैक्शन से हम कई ट्रांजैक्शंस ऑफ रेवेन्यू कर रहे थे. सो हमारी किसी भी ब्रांच को प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत नहीं है, हालांकि वो थोड़ी कम हुई जितनी नॉर्मल टाइम से, बट स्टिल वो प्रॉफिटेबल रही, क्योंकि एसेट लाइट होने की वजह से उनका एक्सपेंस बहुत कम था, प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा थे. वो प्रॉफिट्स कम हुए लेकिन स्टिल प्रॉफिटेबल रही. यही बुके फ्रेंचाइजी का हमारा आइडिया है कि हम कम एसेट्स के साथ उन्हें ज्यादा लीवरेज करें. एक कस्टमर से ही एक ही रिसोर्स से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें, मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेवेन्यूज का टर्नओवर करें. सो दैट इज द आइडिया ऑफ बुके फ्रेंचाइजी. सो ये बुके फ्रेंचाइजी बहुत अच्छे से फिट होता है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल के साथ भी, और जैसा डॉक्टर सुमित ने बताया, को रिलेटेड डिफरेंट सीजनल बिजनेसेस के साथ भी. तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहती हैं. जैसे दिवाली के टाइम पे लोग इंटीरियर बहुत कराते हैं, पेंट, तो हम लोग उन लोगों की लीड्स को चर्न करके काफी पैसा बना सकते हैं. सो दैट इज द आइडिया ऑफ बुके फ्रेंचाइजी, एंड आई बिलीव कि दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल, स्मॉल इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इन शॉर्ट टर्म. Thank you, Ashish ji, for telling us about bouquet franchise. So I would request all that new entrepreneurs और जितने भी हमारे साथ में attendees जुड़े हुए हैं, they can raise a query with us. Our email IDs are info@10expoinfomedia.com, and they can also reach us on our customer care number, which is 8287-933-633, and we are there for you, and we can solve your pain points जो भी आप feel कर रहे हैं. And thanks a lot for all the panelists for coming over for this session, wonderful session, and I hope this topic is going to get benefited for many of the entrepreneurs which are looking forward for buying a startup or a franchisee. And we'll be meeting in the next session with
some unique industries which have grown up, and they'll be coming, and there are some special guests also in the next session. So thank you very much, all the panelists, for joining us. Thank you. Thanks a lot. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Namaskar.